Hello दोस्तों, how are you all? I hope you all are fine at your home and safe also. I am also safe here and making this video from my home. So in the previous lecture I have discussed three problems, two belongs to ring and one belongs to equilibrium. So in today's class I will proceed to the equilibrium concept. I have two different problems belonging to equilibrium concept. So let's begin today. Uh, we have two similar charges of equal magnitude placed at a distance 2L. Okay, a third charge is placed in the midpoint between these two of magnitude plus q, and I have displaced this plus q charge slightly horizontally. Okay, slightly with a distance x. Okay, so when this charge particle, when this plus q charge comes here, this charge particle will repel this particle in this direction, and this charge particle repel this particle in this direction. Okay, so again the net resultant force will be in this direction, because this will dominate, the force of this charge will dominate. Okay, so it will do a system, and in the question it is given that this x is very much less than L, and we have to find the time period of this small oscillation. Okay, so anybody wants to do, pause this video and do by yourself, and otherwise I am doing here. So let's start. When the particle is here, I am writing the net force on it. Okay, when the particle is here, then this distance becomes x plus L. Okay, and this distance become L minus x. Okay, this is L plus x and this is L minus x. So the net force on this will be F net is equals to QQ upon 4 pi epsilon naught x plus L square minus QQ 4 pi epsilon naught x minus L square. Okay, so let's proceed for further. Let's take QQ upon 4 pi epsilon naught common. It will x plus x का whole square minus x minus L का whole square. Okay, so take LCM 4 pi epsilon naught, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है. ओके, तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर. ओके, लेट्स प्रोसीड. क्यू क्यू 4 पाई epsilon naught, this will become minus 4xl, and okay, and here it is given that ये x बहुत छोटा है l के कंपैरिजन में. सो ये l स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर इसके कंपैरिजन में l स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि l ही बड़ा है, और x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि x बहुत छोटा है. तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ओके, so F net becomes, F net is equals to QQ 4 pi epsilon naught minus 4x upon L cube. Okay, this is something like this kind of force. Okay, and हम लोग जानते हैं यहाँ पे ये के क्या होता है, ये के वही वाला है सिस्टम वाला जो टाइम पीरियड हम लोग निकालते हैं 2 पाई रूट एम बाई के वाला ही के है. तो कंपेयर करके ये के की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों इक्वेशन में x कॉमन है, कंपेयर कर लीजिए. ओके, so k will become
Q, 4 will cancel, 1 by epsilon naught L cube. Okay, so the time period will be time period 2 pi. Mass is given, the mass of this particle is m. Okay, this is our answer. We have similar kind of problem in so let's पहले रब कर दे, first rub it, then I will discuss. Here we have similar charges. Okay, plus q and plus q. This is distance 2l, this distance is 2l, and here minus q is present. Okay, और हम लोग इसका मास दिया हुआ है m, और इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग वर्टिकली डिस्प्लेस करते हैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, x डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं. देखिए ये पार्टिकल यहाँ भी आएगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा. सिमिलर अगर पार्टिकल फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से डाउनवर्ड आया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी उसका होगा, वेलोसिटी के कारण वो आगे आ जाएगा. फिर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ आया तो ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, नेट फोर्स ऊपर चला जाएगा. मतलब इसी तरह वो सिस्टम करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा. वही हम लोगों को ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है. तो चलिए उस टाइम पीरियड को निकालते हैं हम लोग. तो सिमिलर वही कंसेप्ट है, उसी का यूज करेंगे. देखिए कैसे, ये एक्स डिस्टेंस मान लिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, ठीक है. ये थीटा मान लीजिए, ये भी थीटा मान लीजिए, ये भी थीटा होगा. ओके, ये इसको एक फोर्स से खींचेगा, ये इसको एक फोर्स से खींचेगा. देखिए अब इस फोर्स को तोड़ दीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में. ये थीटा है तो इधर f cos थीटा हो जाएगा. सिमिलर इधर f sin थीटा. ये f को भी तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा f sin थीटा, नीचे हो जाएगा f cos थीटा. तो ये 2f cos थीटा. नेट फोर्स यही लगेगा इस पे. f नेट क्या लगेगा? 2f cos थीटा. ओके, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ f. f इज इक्वल्स टू क्या होगा? f इज इक्वल्स टू, ये दो चार्ज है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये डिस्टेंस क्या होगा? ये देखिए ये x है, ये 12 दिया हुआ था, ये 12 था तो ये l हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का अंडर रूट, तो उसका करेंगे स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा. ओके, तो इसमें पुट कर दीजिए 2f की वैल्यू q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. देखिए cos थीटा भी है, cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या होगा? इसके लिए cos थीटा के लिए बेस है, ये हाइपोटेनस है, बेस है x, हाइपोटेनस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से. यही नेट फोर्स हो गया 2q x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये भी kx टाइप का फोर्स है. कंपेयर करेंगे तो kx टाइप का फोर्स है. यहाँ पे देखिए kx से कंपेयर करने के पहले इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है x बहुत छोटा है l से, तो x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा l स्क्वायर से. तो दिस वन इज नेगलेक्टेड. सो 2q x on 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब. अब इसको kx से कंपेयर करते हैं. ओके, तो ये देखिए x है, x को छोड़ के बाकी जितना बचा वो k के बराबर होगा. k इज इक्वल्स टू क्या है? 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l. ओके, हम जानते हैं सिस्टम से टाइम पीरियड क्या होता है? t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई k. यहाँ से k की वैल्यू पुट कर दीजिए. m k की वैल्यू क्या देखिए कट होगा, q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l क्यूब.
This will be the answer. Okay. So I have another problem, and it will belongs to the concept of circular motion. So first let's rub it and then proceed. ये एक मासलेस रॉड है, ठीक है। ये एक मासलेस रॉड है, इसके पतला है, मासलेस है, ठीक है। इसके एक पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, अदर पॉइंट में भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और हम इसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं u, ठीक। ये r है इसका लेंथ, और ये वेलोसिटी u दे रहे हैं, ठीक है। दोनों का मासेस दिए हुए हैं, mm है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, ठीक है। इसको ऐसे वेलोसिटी कुछ दे रहे हैं, तो निकालना है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। जैसे इसको आप लोग ऐसे वेलोसिटी देंगे तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन में जाएगा, ऊपर भी जाएगा। तो वही कितना मिनिमम वेलोसिटी इसको दें कि ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। तो चलिए इसको देखने के लिए हम लोग का देखिए क्या वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा और न्यूटन्स लॉ का कुछ कंसेप्ट लगेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये ऊपर चला गया, इस टाइप का सर्कल, इस टाइप का सर्कल में ये चला गया, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये यू मिनिमम था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कब करेगा, जब ये इस रॉड में टेंशन 0 के बराबर हो जाएगा, तब करने वाला होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा तभी, यही कंसेप्ट है, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। ये इस रॉड में टेंशन अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तभी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसी रॉड पे बैठ के, और देखते हैं क्या क्या फोर्स लगता है इस वाले पार्टिकल पे। इधर mg लगेगा, टेंशन भी इधर ही लगेगा, ठीक है। इसी रॉड पे हम लोग बैठे हुए हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हुआ, ठीक है। इधर mv²/r स्यूडो फोर्स लगेगा, इसी बैठे हुए हैं ना, तभी हम लोग को स्यूडो फोर्स भी दिखेगा, ठीक है। mv²/r भी लग गया, और कौन सा फोर्स लगेगा बताइए। mg mv²/r, बस यही 3 फोर्स लगा हुआ है। और ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी लगेगा, Fe भी लगेगा, ओके। चार्ज फोर्सेस है, देखिए यहाँ पे जाएगा, इसको इक्विलिब्रियम में कर दीजिए। इसका मतलब क्या, T + mg = mv²/r + Fe। Fe का वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, q² / 4πε0, ये r², ये r है, उसकी वैल्यू बाद में रखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से T निकाल दिया जाए, mv² / r + Fe - mg। ये v² है, ये v कहाँ का वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे हम लोग एफबीडी बनाए हैं, तो इस पॉइंट का ही वेलोसिटी होगा, इस डायरेक्शन में v होगा, ठीक है। वही v, तो देखिए हम लोग सब पता है, ये mg पता है, Fe पता है, बस mv² नहीं पता है, जिसमें v² नहीं पता है, v की वैल्यू नहीं पता है। तो चलिए उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग निकाल देते हैं v की वैल्यू। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाए, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं एनर्जी लिखने के लिए, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से देखिए देखा जाए, वर्क डन बाई कौन सा फोर्स है, टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी mg प्लस वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स = change in kinetic energy. Final kinetic energy is half mv² minus initial kinetic energy is half u², और यही u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले कंडीशन से v की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो वर्क डन बाई टेंशन क्या होगा, देखिए टेंशन हरदम ऊपर की तरफ लगेगा और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो F.dr जब होगा तो cos 90 हो जाएगा, F.dr cos 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा, देखिए ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, और मोशन 2r डिस्टेंस पे मतलब कवर कर लिया ये पार्टिकल, तो उसका वर्क डन निगेटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mgh होता है, तो mgh की वैल्यू 2r
ओके। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हरदम इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी जीरो हो गया। इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपन 2 इधर ला दीजिए, माइनस 4mgr हो गया प्लस mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। अब इस mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए और t को 0 के बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो mv स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो भाई, mv स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, t इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू पुट करो, माइनस mgr माइनस mg 4gr प्लस mu स्क्वायर अपॉन ये r है। ठीक है, हाँ इसमें mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दिया मैंने, प्लस fe होगा, fe की वैल्यू क्या है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ओके, माइनस mg, इसी को 0 के बराबर करना है हम लोगों को। चलिए किया जाए, ओके, माइनस 4mg, देखिए ये कट जाएगा, प्लस mu स्क्वायर अपॉन r प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस mg, ओके, इसको 0 के बराबर करना है। टेंशन को हम लोगों को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करेंगे तभी ये वर्टिकल साइन रूल कंप्लीट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये माइनस 5mg बन गया और माइनस 5mg को उधर लेते चलिए तो प्लस 5mg हो जाएगा, इसको भी उधर लेते चलिए तो माइनस हो जाएगा। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mu स्क्वायर अपॉन r। ठीक है बाबू, देखिए r को इधर ले चलिए और m से डिवाइड कर दीजिए तो 5g r इधर आएगा, q r ये भी डाल दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। ठीक है, ये देखिए r स्क्वायर एक r कट जाएगा, नीचे में बस केवल एक r बचेगा। ठीक है, m से हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं तो नीचे m भी आ जाएगा, अंडर रूट भी आ जाएगा क्योंकि u स्क्वायर है, यही u मिनिमम की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होता और हम लोग बस पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस करते, वेलोसिटी देते तो बस केवल 5mgr होता, ये वाला नहीं आता। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर मोशन में करते हैं, इसी को मैंने बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जोड़ दिया, चार्ज लगा दिया। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे। ओके, उसमें भी कुछ नहीं है, बस मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर खत्म करूंगा, उस पर सवाल नहीं लगवाने जा रहा मैं, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड को कर लिया, डायरेक्शन अलग से देख लिया, बस वेक्टर फॉर्म वाला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या बताता है एक साथ बताएगा। तो देख लीजिए ये वाला वेक्टर r1 हो गया, इस पे q1 चार्ज है, ये r2, इस पे q2 चार्ज है। ठीक है, ये r वेक्टर हो गया। ठीक है, ये देखिए r1 प्लस r इज इक्वल टू r2 वेक्टर है ना, r वेक्टर क्या हो गया हम लोगों का, r2 माइनस r1 वेक्टर, r1 प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, r वेक्टर हम लोग r2 माइनस r1 वेक्टर। देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स का क्या कहता है कि फोर्स ऑन ट्यूब ड्यू टू 1 स्पेस के चलते क्या होगा, q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये मॉड ऑफ r क्यूब बाई r वेक्टर, ऊपर में r वेक्टर। ओके, यही होगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, q1 q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, r2 माइनस r1, और इसको भी r2 माइनस
R1 वेक्टर इसका मॉड वैल्यू का क्यूब, यही वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स ला है। तो बेसिकली इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सवाल करते हैं, जैसे क्यूब के वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है तो किसी एक वर्टिसेस पे सब वर्टिसेस के चलते फोर्स निकालेंगे, तो उसमें मैं सवाल नहीं कराने जा रहा हूँ। आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।